Hello everyone, welcome to Success Series Education. And as you all know that I'm Divya, your science educator, and I'm up to explain the sample question paper issued by CBSE as per the new guidelines for 2021 Science Term 1. And in this video, I'm going to solve section B and C. So in case like if you have seen the section A, like this is my advice to you that first thoroughly prepare the section A and then move on to the section that is section B. And if in case you are stuck somewhere, or if you have any queries, just pen it down in the comment section. I'm going to resolve all your queries and just make you perfect in science. So let's begin with this video where I'm going to solve section B, right, and section C. And you know that the purpose behind making these sessions is to just make you practice more and more. And this is my advice to you that whenever you come across your any sort of examination, so more you will practice, more you will be confident. So our motto is to just make you confident. So let's begin with section B. And as you all know that in section B, like A section we have already done, in section B हमारे पास 24 questions होंगे और हमें 20 ही attempt करने होंगे. और C अभी हमने इसमें discuss करना है जिसमें 12 questions होंगे और हमें 10 questions ही attempt करने होंगे. All questions will carry equal marks and there won't be any negative marking. So you are secure, like if you don't know the correct answer of any question, so don't leave it unattempted. Just mark anything which you feel like. और आपको लगता हो कि ये ऑप्शन थोड़ा आपको लग रहा है कि ये क्लोज है, मतलब बहुत ज़्यादा आंसर के, तो उसको सीधा टिक कर देना बिना सोचे समझे, बिकॉज दिस इज एन एडवांटेज टू यू दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ओके, so here we start with section B. So you have to attempt 20 questions, but in this session I'm going to solve all 24 questions because we don't know कि कौन सा question इसमें से आ जाएगा. तो हम किसी भी question को नहीं छोड़ेंगे, सारे 24 questions आपकी revision के लिए discuss करने वाले हैं. So 25th question of this paper is identify the correct option from the given table which represents the type of reactions occurring in step 1 and step 2. अब बेसिकली फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं है. तो आपको बोला गया है यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 दिया गया आपको, ठीक है. और आपको क्या करना है, आपको बोला गया है कि करेक्ट ऑप्शन इस टेबल के डेटा को देखते हुए हमें करेक्ट ऑप्शन देना. पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं. दिस इज लाइमस्टोन और अगर आपको याद हो फॉर्मूला तो इट इज CaCO3. हम इसको हीट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अंडरगोइंग थर्मल डिकम्पोजिशन. और जब ये टूटेगा तो ये बनाएगा क्विकलाइन which is CaO, जिसको चूना भी कहते हैं, and carbon dioxide. This is step 1. अब यहाँ पे heat दे रहे हैं, so that means this is endothermic reaction. Okay. Now we are adding this line that is X which we have identified to water. Step 2 है ये, और हमारे पास बन रहा है slake line. और स्लेक लाइन का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस. और हमें ये भी पता है कि जब हम चूने को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है. इतनी एनर्जी निकलती है दैट इट प्रोड्यूस द हिजिंग साउंड इस तरीके से. सो आई राइट बिकॉज इट इवॉल्व्स द एनर्जी, सो इट इज एक्सोथर्मिक एंड एनर्जी कम्स आउट like the identifying property you can say is the hissing sound. Okay, so we have what we have to do is we have the table, okay, and step 1 step 2 हमें बताना है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक. तो ये तो बहुत बहुत ईजी है हमारे लिए, क्योंकि बेसिकली आपको पता है यहाँ पे हमें स्टेप 1 हम देख चुके हैं दैट इट इज एंडोथर्मिक और स्टेप 2 हमारे पास है एक्सोथर्मिक. सो 1 सेकेंड, आई एम जस्ट टेलिंग यू. अब यहाँ पे आपको दिया है क्रॉस ए में और सेकेंड में दिस इज मिसप्रिंट, दिस इज टिक, एंड बी के अंदर भी दिस इज टिक, सी के अंदर भी दिस इज टिक, एंड दिस इज ऑल्सो टिक. ओके, एंड दीज आर क्रॉसेस. सो बेसिकली यहाँ दिया है कि जो ए रिएक्शन है, ए ऑप्शन है कि ये एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक है. स्टेप 2 यहाँ पे दिया है बी कि स्टेप 1 एंडोथर्मिक है लेकिन स्टेप 2 एक्सोथर्मिक नहीं है. सी के अंदर हमें दिया है कि ये स्टेप 1 एंडोथर्मिक है और स्टेप 2 एक्सोथर्मिक है, और डी में दोनों ही क्रॉसेस है. तो हमें पता है कि स्टेप 1 एंडोथर्मिक है और स्टेप 2 एक्सोथर्मिक है. तो बेसिकली जिसमें भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों टिक दिखेंगे वो करेक्ट आंसर होगा. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ईयर इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट। अब इस क्वेश्चन को अगेन हमें एक ग्राफ दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, हाइड्रोजन आयन किस तरीके से, क्योंकि ये ग्राफ पीएच वैल्यू दिया के ईयर दिए गए हैं और पीएच वैल्यू के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। सो पीएच इज नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अगर किसी का पीएच मोर है या हाई है तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम होगा, क्योंकि ये देखो नेगेटिव के अंदर है। अगर किसी का पीएच लेस है तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा, मोर, मतलब उल्टा इफेक्ट होता है। अब यहां पूछा है हाइड्रोजन आयन हाईएस्ट किस में है। हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन का मतलब है कि जिसका पीएच सबसे कम होगा, जिसका पीएच स्मॉलेस्ट होगा, उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। और इस ग्राफ को देखो कितना इजी है ये क्वेश्चन करना। सबसे कम हाइट का आपको ग्राफ कौन सा दिख रहा है, ये वाला 2008 वाला, ठीक है। सो बेसिकली जिसका पीएच सबसे कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा होंगे। सो ऑप्शन 2002, 2008, 2011, 2005। सो वील गो विद बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड्स। आपके पास ए बी सी डी टेस्ट ट्यूब्स दिए और यहाँ पे आप देखो जिंक इज रिएक्टिंग विद HCl और इसके अंदर Mg इज रिएक्टिंग विद HCl और इसके अंदर आपके पास Fe इज रिएक्टिंग विद HCl और इसमें Cu इज रिएक्टिंग विद HCl। ओके, तो बेसिकली अभी तो हम पहले रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई रिएक्शन करते हो ना या कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया है तो जो भी नॉलेज प्रायर आपको है ना, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा सम अप कर लो ताकि आपके लिए वो इजी रहेगा और ये रिएक्शन होगा नहीं। सो हमें बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम के बारे में बताना है। तो यहाँ पे MgCl2 बनता है और H2 बनता है और ये आपको मैं बता दूं कि जो H2 है वो मैग्नीशियम के सरफेस पे स्टिक कर जाता है और जो मैग्नीशियम को लाइट वेट बना देता है और मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है। अब ऑप्शंस देखते हैं। मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl। नो, इट इज नॉट लाइटर. Magnesium reacts with dilute HCl to produce H2, which helps in floating. Yes, it does. Because H2 sticks to the surface of magnesium, make it light, और उससे ये float करने लगता है. Mg react with HCl to produce N2. No, नाइट्रोजन तो है ही नहीं तो रिलीज होगी ही नहीं. HCl to produce CO2. Again, this is wrong. So the correct option is option B. Next question. The table shown below gives information about 4 substances. आपके पास 4 सब्सटेंसेज है A, B, C और D और इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया है। हमें बताना है कि आयनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। तो मैं आपको रिकॉल करा दूं कि आयनिक कंपाउंड हमारे वो होते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड किस में बनता है, मेटल और नॉन मेटल में। और कैसे बनता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती है कि उनमें जैसे ये कंपाउंड बना है उनमें चार्जेस होते हैं, तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है, वो हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो गुड कंडक्टर होते हैं इन देयर एक्वस फॉर्म और इन देयर मोल्टन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डेटा में क्या क्या चीज़ दी है, मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मैं आपको बता दूं। सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बट लिक्विड, एक्वस और मोल्टन स्टेट में वो करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड वो होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन लिक्विड और एक्वस में करेगा। अब इसमें बेसिकली यहाँ तो ये पुअर दिख रहा है, तो बेसिकली ये हमारा ऑप्शन हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और वो सॉलिड में कंडक्ट नहीं करते बट लिक्विड और एक्वस में करते हैं। सो दैट मीन्स बी एंड सी दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स हैं और ऑप्शन क्लियरली विजिबल है बी में। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि हर बार ऑप्शंस पढ़ो और क्वेश्चन करो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ऑप्शन पढ़ने से कंफ्यूजन और टाइम वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको जो भी आप उससे समझ पा रहे हो उसको रिकॉल करो और फिर फोकस करो जिस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछा गया, और आपका टाइम भी बचेगा और आंसर भी आप करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vinay observed that the stain of curry of white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water.
What might be the reason for his observation? अब क्वेश्चन है कि विनय की शर्ट पे करी का स्टेन लग गया. करी आपको पता है हल्दी डाल के बनती है, तो बेसिकली स्टेन कौन सा होगा? येलो, टर्मरिक का स्टेन होगा. ठीक है. बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब. तो ठीक है, सोप से जब हम उसको धोएंगे तो वो रेडिश ब्राउन ही होगा, क्योंकि जो टर्मरिक है वो जब बेस के साथ कॉन्टैक्ट में आता है इट टर्न्स रेड. ओके, बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर. व्हाट माइट बी द रीजन? अब रीजन क्या है? सोप एक तो बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि सोप एसिडिक तो होता ही नहीं है. टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, बिल्कुल सही है, नेचर में मिलता है आपको, जो कि रेडिश टिंट देता है बेस के साथ, अगेन सही है. रेडिश विद एसिड नहीं, वो नहीं देता. तो बेसिकली 2 and 3 ऑप्शन हमारे पास सही है. तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा हम अपने ऑप्शन को स्ट्राइक करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे और उसको टिक कर देंगे. तो हमारा करेक्ट आंसर है बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following setups would the bulb glow? Not the blood bulb glow. Okay, so आपको मैं यहाँ पे ध्यान से याद करवा दूँ कि बल्ब ग्लो करना मतलब इससे मुझे समझ आया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना. अब इलेक्ट्रिक करंट तब प्रोड्यूस होगा, क्वेश्चंस में फिगर दिख रही है, जब सर्किट में कोई ब्रेकेज नहीं होगी, है ना, क्योंकि सर्किट में कोई तार टूटी होगी तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं. बल्ब फ्यूज भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. ओके, और दूसरी चीज़ है कि उसमें जो सॉल्यूशन है दैट शुड बी अ कंडक्टर. उसमें जो सॉल्यूशन यूज हुआ है वो कंडक्टर होना चाहिए, तभी सर्किट कंप्लीट होगा. अब ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में डाइल्यूट HCl है और आयरन नेल है. ये कंडक्ट करते हैं बिकॉज इट डिसोसिएट इनटू आयंस एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज नॉट एबल टू डिसोसिएट इनटू आयंस, सो इट वोंट कंडक्ट एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो. Third part में alcohol in water, again it doesn't glow. Lime water, so distilled water is poor conductor, but when you add lime, that means you are adding acid, so it becomes acid related water. Yes, it is conductor. So 1 and 4, in apparatus 1 and 4 the bulb will glow. और हमारा ऑप्शन हमें दिख गया है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 to 34 मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब हमने एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपके पास असर्शन एंड रीजन होने वाले हैं. और असर्शन एंड रीजन मैंने देखा है कई बच्चों को अटेम्प्ट नहीं करने आते. तो लेट मी टेल यू द मेथड टू अटेम्प्ट असर्शन एंड रीजन. असर्शन एक स्टेटमेंट होगा, रीजन में भी एक स्टेटमेंट होगा. सो अगर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन उसका एक्चुअल रीजन है असर्शन का, तो आप आंसर में अपना लिख दोगे ए. ठीक है. अगर असर्शन रीजन दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं जो रखी गई है, बट रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, तो आप अपने आंसर में क्या लिखोगे? बी. अगर असर्शन एक सही स्टेटमेंट है, रीजन स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो आप लिखोगे सी. और अगर असर्शन फॉल्स स्टेटमेंट है और रीजन सही है, तो आप लिख दोगे डी. तो इस तरीके से असर्शन को ABCD करके आपको लिखना होता है. तो पहला असर्शन रीजन देखते हैं. Decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction. मतलब किसी को तोड़ना. आपको पता है ऑब्वियसली जब हम किसी का डिकम्पोजिशन करते हैं तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट तो होता है. सो इट इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट. Decomposition reaction involves breakage of single reactant into simpler product. अब इसके अंदर आपको बेसिकली दिया गया है, लेट मी जस्ट सी के ये स्टेटमेंट सही है ना, कुछ इसमें मिस प्रिंटिंग तो नहीं है. ओके, यस इट इज राइट. तो हमें बेसिकली यहाँ पे दिया गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये सही है. इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकेज ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, ये भी हमारा सही है. सो बेसिकली यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट रीजन को ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो दैट मीन्स विल गो विद ऑप्शन बी. Next question, assertion, fresh milk in which baking soda is added takes a longer time to set as curd. Fresh milk अगर उसमें baking soda डाल दो, it takes a longer time to set as curd. This is true. Okay. Baking soda decreases the pH value of fresh milk to below 6. No, not at all. It doesn't decreases the value. Baking soda जो होता है that is base. So it will increase the value of the pH above 6. So reason is incorrect. So assertion true, reason incorrect, that means the answer would be C. Next, resins and gums are stored in old xylem tissue in plants. Yes, it is correct. These are the excretory products and they are stored in the old xylem tissue.
So we have assertion correct. Resins and gums facilitate transport of water molecules. No. To transport water molecules, we just have xylem, which is responsible for the transportation of water from the soil to the aerial parts. So assertion is true, but reason is false. So that means we'll go with option C. Next, sky appears blue in daytime. Yes, we all see that अगर आप दिन में sky देखते हो तो वो blue ही दिखता है. So assertion is correct. White light is composed of 7 colors. Yes, white light is composed of 7 colors because when you pass the white light from prism, वो split हो जाती है अपने different components में. And when you pass different components from the inverted prism, it forms the white light. So that means reason is also correct, but reason doesn't explain the assertion. So we'll go with B. That is assertion correct, reason correct, but reason is not the correct explanation for the assertion. Next question, again back to normal MCQ. So we have the table given below shows the reaction of few elements with acid and bases to evolve hydrogen gas. टेबल दिया है आपको और इस टेबल में हमें एसिड और बेसिस दिए हैं और हमें ये दिया है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या बेस के साथ करते हैं या नहीं और वो गैस इवॉल्व करते हैं कि नहीं. सो बेसिकली हमें बताना है कि इसमें से एम्फोटेरिक कौन है. तो मैं आपको रिकॉल करा दूँ, हमने मेटल्स नॉन मेटल्स जब किया था तब मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था कि एम्फोटेरिक वो होते हैं. एम्फोटेरिक का मतलब होता है विच पोजेस एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर. बेसिकली कहने का मतलब है ऐसी चीज़ें एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और बेस के साथ भी रिएक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है हमारी दो मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दोनों ही एम्फोटेरिक है. वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेती हैं दोनों और ये दोनों बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेती हैं. जैसे Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट करोगे, वी विल गेट NaAlO2 plus H2. And similarly, if you react Al2O3 with HCl, you get AlCl3 plus H2. And similarly, Zn also react with HCl and form ZnCl2 plus H2O. Okay, so basically एम्फोटेरिक वो है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे. और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे B और D दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी ऑप्शन पे करेक्ट सर्कल लगा देंगे. So B would be the correct answer. Next question. In which of the following group of organisms blood flows through the heart only once during one cycle of passage throughout the body? That means given आपको pairs दिए और आपको बताना है कि इनमें से किसमें one cycle मतलब जो blood है it flows through the heart only once. That means we are talking about single circulation. So the option is rabbit, parrot, turtle, frog, crocodile, pigeon, whale, labio, penguin, shark, dogfish and stingray. And the option is this because they like इनके अंदर जो blood है वो single circulation में pass करता है. Otherwise आपको पता है turtle और frog में 2 chambered heart है और बाकी में 4 chambered heart है. So but this is the correct answer क्योंकि यहाँ पे basically single circulation होता है. Next question. What is common between extensive network of blood vessels around the walls of alveoli and in glomerulus of nephron? So let me remember you that alveoli is an air sac like this and it is supplied, richly, you can say it is surrounded by tuft of capillaries. And if I talk about glomerulus, we know that it is a part of capillaries which is enclosed in the Bowman's capsule. सो बेसिकली इनमें जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का ये बहुत ही थिन वेसल्स होती है और ये कैपिलरीज होती है बेसिकली और यहाँ से इसमें गैसेस एक्सचेंज होता है और इससे जो यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो डिफ्यूज होकर बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट बनाते हैं. अब ऑप्शंस है थिक वॉल्ड आर्टरी रिचली सप्लाइड, नो दे आर नॉट आर्टरीज. थिन वॉल्ड वेन्स, नो दे आर नॉट वेन्स, दे आर कैपिलरीज एंड कैपिलरीज आर नेवर thick walled, they are always thin walled. So option D is the correct, that they are thin walled capillaries richly supplied with blood. So D will be the right answer. Next question. Plants use completely different process for excretion as compared to animals. जो plants होते हैं वो अलग ही process use करते हैं. Excretion means अपना waste को remove करने के लिए. Which one of the following process is not followed by plants? बेसिकली आपको बताना है कौन सा प्रोसेस है जो नहीं फॉलो करते प्लांट्स एक्सक्रीशन के लिए. सो दे गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. यस दे डू.
उनके अंदर स्टोमेटा होता है, स्टोमेटल पोर खुलता है और एक्सेस वाटर ट्रांसपायर, दैट इज लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. दिस हैपेंस. They selectively filter toxic substances through their leaves. No, leaves don't have any such property that they can filter the toxic substances. नहीं, ऐसा नहीं होता. Waste products are stored as resins. Yes, हमने reason assertion में भी किया था अभी. They excrete waste substances into soil. Yes, they do. So basically, B is the option which is not followed by the plants for excretion. Next question. If the power of lens is -4 diopter, this is D, -4 diopter, I'll write here. What then it means that the lens is, so let me tell you one thing, power का मतलब होता है कि लेंस कितनी रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है. ठीक है, तो अगर हमारे पास जो पावर ऑफ लेंस होती है वो पॉजिटिव डायोप्टर में होगी, सो इट इज गोना बी कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. अगर माइनस डायोप्टर में होगी, इट इज गोना बी डाइवर्जिंग, दैट इज कॉन्केव लेंस. ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो नेगेटिव दिया है आपको. नेगेटिव का मतलब है इट विल बी कॉन्केव, तो कॉन्वेक्स वाले सारे ऑप्शंस हम देखेंगे ही नहीं. ओके, सो इट इज गोना बी आउट ऑफ ए और सी. अब यहाँ पे फोकल लेंथ दी है. फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर्स में दिया है, तो मैं इसको 100/f ले लेती हूँ. पावर गिवन है आपको -4, सो f बिकम्स 100 -4. दोनों ही माइनस में है तो इसलिए हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा. सॉल्व करोगे -25 आपके पास आ जाएगा. सो दिस इज गोना बी -25, दैट इज कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर. तो सी करेक्ट है, ए रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of concave mirror. आपके पास कॉन्केव मिरर है और आपको बोला है कि जो रेज है, कोई भी रेज है, वो कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे एट 15 सेंटीमीटर. लेट मी टेल यू, कन्वर्जिंग पॉइंट हमेशा फोकस होता है. ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज अ फोकल लेंथ. दिस इज फोकल लेंथ. सो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम. अब इसको पढ़ते ही मुझे समझ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सिर्फ तब सेम होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, और सी का डिस्टेंस क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. सो दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर. तो हमें पूछा है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे. ऑब्वियसली इट हैज टू बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. तो ए हमारा करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स food material is broken down outside the body and then absorbed. मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें फूड मटेरियल बाहर टूटता है और फिर एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिजम्स. ऑप्शन है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा. नो, ग्रीन प्लांट्स तो आपको पता है, ग्रीन प्लांट्स इज एन ऑटोट्रॉफ, अमीबा होलोजोइक मोड, मशरूम सैप्रोफाइट. So B, yeast, mushroom, bread mold. Yes, it is correct. They all are saprophytes. They secrete the digestive enzymes from their body which convert the complex into simple, and then in the soluble form they absorb it. Paramecium amoeba, cuscuta, no. Cuscuta, lice and tapeworm, no. So answer would be option B. Next question. In a person, the tubule part of the nephron is not functioning at all. एक पर्सन है जिसमें ट्यूब्यूलर पार्ट जो नेफ्रॉन का होता है, आपको पता है नेफ्रॉन इज समथिंग लाइक दिस, है ना. इसमें पीसीटी, डीसीटी, सीटी ये सब होते हैं, हेनल्स लूप भी होती है. इट इज़ नॉट फंक्शनिंग. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द यूरिन. अब हमें पता है कि जो हमारा ये ट्यूब्यूल है इसका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन बेसिकली. तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो यूरिन विल नॉट बी फॉर्म. नो, इट विल बी फॉर्म. Quality and quantity, no, is not affected. It will be more concentrated, no. It will be more diluted. So D would be the right answer. Next question. If the real image of candle flame formed by the lens is 3 times the size of the flame, real image, दोबारा पढ़ती हूँ, real image है candle की formed by the lens 3 times the size of the flame. मतलब M दिया है, real है तो -3 times मतलब -3. Distance between the lens and the image is 80. Lens and image, that means it is B. Image distance है हमारे पास. Okay, at what distance should the candle be placed from the lens? तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है U basically. अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है लेंस और इमेज का 80 है और इमेज रियल है, तो V would be negative, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इन्वर्टेड इमेज बन रही है. ठीक है, so we'll have the lens formula that is equal to, one second, let me just check the value whether it is misprint or something.
just give me a second. Okay, so we are having, that is V is 80, it's not minus 80, it's 80 because it is a lens. M is minus 3, U we have to find. So for lens we have the formula V by U. Please remember, for mirror it is minus V by U, for lens it is V by U. So it comes out to be minus 380 by U. So U comes out to be minus 80 by 3. And you can see that we have this option. So D is the correct answer. Next question. While looking at the above diagram, Nalini concluded the following. Now let's look at the diagram first. तो डायग्राम है ऑब्जेक्ट F और C के बीच में पड़ा है. ओके, ये रे जा रही है, C से पास हो रही है, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, ये हमें पता है. और F और C के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो आपको शायद याद भी हो, इमेज बियॉन्ड C बनती है, रियल इन्वर्टेड होती है और मैग्नीफाइड होती है. अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें सब कुछ ही आता है. इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल. नो, image will be formed on this side and it will be real and inverted. तो ये तो गलत है. Reflected ray will travel along the same path as the incident. Yes, because whenever the ray passes from C, it retraces its path. It is correct. Image of the object will be inverted. Yes, it will be real and inverted. This is a concave mirror. The focal length will be negative. Yes, because we measure all the distance from pole and anything which lies on this side is negative. So that means 2, 3, 4 statement is correct and we do have this option. So C would be the right answer. अब आपने देखा कितनी जल्दी मैंने ऑप्शंस को फटाफट से पढ़ा और कितनी जल्दी मैं अपने आंसर तक पहुंची. आपने भी ऐसे ही करना है. पहले जो क्वेश्चन है उसको समझो, अपना जो भी आपका नॉलेज है उससे रिलेटेड उसको रिकॉल करो और फिर सीधा स्ट्राइक करो अपने राइट आंसर पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In the above diagram, light is traveling through different media. So we have this diagram and light is traveling through different media, medium 1, 2, 3 and 1. Okay. It is noted that the scientist that angle 1 is equal to angle 3 is equal to angle 4, but angle 2 is less than angle 1. तो बेसिकली आपको दिया गया है कि जो एंगल 1 है वो 3 के इक्वल है, ये इसके इक्वल है. ओके, और 3 4 के इक्वल है, ये इसके इक्वल है. ठीक है, और जो एंगल 1 है दैट इज ग्रेटर देन एंगल 2, और ये तो मुझे दिख ही रहा है, तो दैट मीन्स ये रेयर मीडियम होगा और ये डेंसर होगा. ठीक है, तो हमें यह क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट को देखना है कौन सा करेक्ट है. मीडियम 1 इज द डेंसर, देन मीडियम 3. अगर मीडियम 1 डेंसर होता तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो छोटा होता, बट यहाँ दिया है एंगल 1 आपके पास ग्रेटर है एंगल 2 से, तो ये स्टेटमेंट गलत है. मीडियम 2 इज द रेयरेस्ट. अगर मीडियम 2 रेयरेस्ट होता तो एंगल 2 कभी भी छोटा नहीं होता, ये भी गलत है. मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1, ये तो बात ही नहीं उठती क्योंकि 1, 3, 4 इक्वल है तो उनका डेंसिटी सेम है. So we are just left with the last one and I think this is going to be the answer. So medium 1 and 3 are essentially the same. Yes, they are same because 1 and 3 का angle equal है. But medium 2 is denser. Definitely it is denser. तभी तो ये angle इससे छोटा है. आपको दिया है ना कि angle 2 is less than angle 1. Okay. Yes. So D is the correct answer. So this is how you're going to look for the statements. Next question. The refractive index of flint glass is 1.65. We have the refractive index. That means the speed with which the light travels in the flint glass with respect to air. Okay, that is 1.65. और अल्कोहल के लिए दिया है 1.36 with respect to air. Okay. What is the refractive index of flint glass with respect to alcohol? इन क्वेश्चंस में बता दूं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो चीज़ आपको दी होती है ना, वो हमेशा डिनोमिनेटर में लेते हो आप. क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये भी दे सकती थी कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू फ्लिंट ग्लास, तो आप विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला हमेशा डिनोमिनेटर में लोगे. तो मतलब यहाँ पे अल्कोहल डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू के बाद है, और या फ्लिंट ग्लास ऊपर आएगा. तो ये सिंपल लगते हैं बट बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं. सो बेसिकली जब आप 1.65 को 1.36 को इससे डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट द आंसर दैट इज 1.21. इट वुड बी 1.21. So B would be the right answer. Next question. The above lens has a focal length of 10 centimeter. ये लेंस दिया है और इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर. ओके,
द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेंस हैज अ फोकल लेंथ, पॉजिटिव ही होगा 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है दैट इज 2 mm. 2 mm मीन्स 0.2 सेंटीमीटर, right? So it is going to be 0.2 centimeter. Okay, so we have, one second, let me just check. Okay, so it is placed, object is placed at a distance 5 centimeter. तो u भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज इन नेगेटिव, दैट इज ऑलवेज इन नेगेटिव. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज. हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ऑब्जेक्ट का हाइट है. तो जब आपके पास f और u है तो सबसे पहले तो आपको पता हाइट निकालने के लिए हमें m चाहिए, तो हम पहले v निकाल लेते हैं. और ये लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सो इट इज गोना बी 10, दिस विल बी v हमें फाइंड करना है, एंड u वुड बी -5. तो ये आपके पास हो जाएगा 1/10 1/v प्लस का 1/5. यहाँ ले आओगे और v के लिए सॉल्व करोगे, तो मैं डायरेक्टली बता रही हूँ ताकि आपको आंसर पता लग जाए. तो v हमारा आ जाएगा -10 सेंटीमीटर. अब v जब आपके पास आ गया तो हम इसको निकालेंगे, m इज इक्वल टू v/u. तो m की वैल्यू आ जाएगी -10, u है -5, इट वुड बी 2. अब जब m आपके पास 2 आ गया तो हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 इज इक्वल टू इमेज का हाइट हमें निकालना है, दिस वुड बी 0.2. ओके, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इट वुड बी 2 इंटू 0.2, it would be 0.4 centimeter, which will be 4 mm. So C would be the right answer. तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने लेंस फॉर्मूला लगाया, और फिर उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन फाइंड की, और फिर मैग्निफिकेशन से हमने हाइट ऑब्टेन की. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. एक केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने कुछ एलिमेंट्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे टेस्ट किया. सो विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स वर डिस्कार्डेड फॉर द यूसेज. तो बेसिकली केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वी नीड अ सब्सटेंस टू बी मेलिएबल, मतलब उसको जब आप हैमर करें तो वो थिन शीट्स में टूटे. वी वांट द सब्सटेंस टू बी डक्टाइल, मतलब उसे हम वायर्स बना पाए. गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इट शुड बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए ताकि वो मेल्ट ना हो जाए. सो दैट मीन्स ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं देखूँ किसी के अंदर भी नो होगी तो वो डिस्कार्ड करेगी कंपनी. सो यहाँ पे yes वाला W है, सो दैट मीन्स W विड बी कंसिडर्ड आइडियल, और XYZ में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, सो इट वुड बी डिस्कार्डेड, क्योंकि एक भी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता. सो B वुड बी द करेक्ट आंसर. So we have completed section B. So now let's start with section C. So let's practice, as I have been telling you that practice makes you more and more perfect. तो पहले section A करना, B करना, इन questions को खुद thoroughly solve करना, and then move on to section C. तो section C के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, you'll be having 12 questions. Basically case studies होंगी यहाँ पे 3, और हर case study पे based आपको 4 questions मिलेंगे, and you need to attempt 10 questions from this section. But अभी के लिए हम सारा discussion करने वाले हैं. So first case study is the salt story from the Indian Express 9th March 2021. The salt pans in Marakanam, a port town about 120 km from Chennai, are the third largest producer of salt in Tamil Nadu. Separation of salt from water is a laborious process, and the salt obtained is used as a raw material for manufacturing of various sodium products. One such compound is sodium hydrogen carbonate, okay, that is NaHCO3, which is used in baking, antacid or soda acid fire extinguishers. The table shows the mass of various compounds obtained when 1 liter of seawater is evaporated. We have the compound sodium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate, calcium sulfate and calcium carbonate, NaCl, MgCl2, MgSO4, CSO4 and CaCO3. And 45 ग्राम सॉल्ट में इनका जो मास रेशियो दिया है दैट इज 28 ग्राम्स पर ग्राम, 8 पर ग्राम, 6 पर ग्राम, 2 पर ग्राम एंड 1 पर ग्राम. देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं. सो विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शंस है NaCl, CSO4, CaCO3, MgSO4.
अब देखो यहाँ पे रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कभी भी किसी कंपाउंड में कार्बोनेट होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है, और अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो किसी चीज़ मेटल के साथ रिएक्ट करती है, टर्न्स इनटू कार्बोनेट। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बोनेट वाला आपको ऑप्शन सी दिख रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ लेट्स HCl ले लेते हैं, तो रिवॉल्व रिएक्ट करेगा तो इससे CO2 इवॉल्व होगी ही होगी। अदरवाइज इसमें तो है ही नहीं सी का कोई कंपाउंड, इसमें भी सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है। तो डायरेक्ट अगर आपको ये नहीं भी पता था तो भी आप कर सकते थे, क्योंकि कार्बन वाला कंपाउंड और रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड? Saturated solution means when you are mixing NaCl with water. So when you mix NaCl with water, you get a solution called as brine. We call it as brine. And if you react with further with ammonia, it becomes ammonical brine. But यहाँ सिर्फ NaCl का concentrate solution बोला था, so it is brine. लाइम वाटर तो नहीं होता है, स्लेट लाइम भी आपको पता है, दैट इज CaOH होल ट्वाइस सोडा वाटर है जिसमें CO2 होता है. सो दीज ऑल आर रॉन्ग एंड A would be the correct answer. Next question. How many grams of magnesium sulfate are present in 135 grams of solid left by evaporation? अब यहाँ पे पूछा है कि कितना ग्राम्स MgSO4 होगा जो is present in 135 grams of solid which is left by evaporation. तो इसके लिए हमें एक बार डेटा देखना पड़ेगा, वापस से हमें बैक करना पड़ेगा. तो यहाँ हमें दिया था कि 45 ग्राम्स में 6 ग्राम्स प्रेजेंट है. यूनिटरी मेथड से बेसिकली हम करेंगे इसको. तो आपके पास 45 ग्राम्स में ये कितना प्रेजेंट था? 6 ग्राम्स. तो 1 ग्राम में कितना होगा? 6/45. और आपको निकालना कितने में है? 135 में. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे, और जब आप इसको सॉल्व करोगे बेसिकली जो आंसर आएगा कट करके इट वुड बी सी, दैट इज 18 ग्राम्स. सो सी वुड बी द राइट आंसर. सो यू आर गोना डू इट बाय यूनिटरी मेथड. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH ऑफ एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl. आपको पता है NaCl बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस HCl और NaOH रिएक्ट करते हैं, तभी आपके पास सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट न्यूट्रल होता है. तो बेसिकली यहाँ जो एसिड रिएक्ट करता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो pH होता है इट लाइज बिटवीन 1 to 3, क्योंकि 6 to 8 वाले वीक एसिड्स होते हैं, 8 to 10 वाले बेसिस हो जाते हैं, और ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हो जाते हैं. तो D, C, B बिल्कुल गलत है, और A हमारा करेक्ट आंसर है. Okay, now we have case study 2. The figure shown below represents an activity to prove the requirements of for photosynthesis. ये आपको एक्टिविटी दी गई है. ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स जो कि आप देख सकते हो उनको 72 आवर्स के लिए डार्क में रख दिया गया. 72 आवर्स के बाद KOH रखा गया वॉच ग्लास में एक X के अंदर, और लेकिन Y में नहीं था वो. बोथ दिस सेटअप्स आर एयर टाइट थे, और इनको लाइट के अंदर रखा 6 घंटे के लिए. देन आयोडीन टेस्ट इज परफॉर्म विद 1 लीफ फ्रॉम X, इसके लीफ से, और फिर इसके लीफ से. So basically this experiment setup is used to prove essentiality of which of the following requirements? It is carbon dioxide. Now let me explain it to you that how it is used. अब जहाँ पे KOH होगा it actually absorbs the carbon dioxide, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए one of the prime requirement is carbon dioxide. So अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा. So this is used to prove the essentiality of carbon dioxide, not chlorophyll, not oxygen, not sunlight. The function of KOH, as we have already discussed, it absorbs carbon dioxide. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो प्लांट खाना नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस उस अपरेटस में नहीं होगी. Which of the following statements shows the correct results of iodine test performed? तो मैं आपको याद करा दूं, X वाले पॉटेड प्लांट में KOH था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी, KOH उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो आयोडीन टेस्ट भी नेगेटिव होगा. लेकिन Y के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी. अगर आप उस लीफ को ट्रीट करोगे आयोडीन टेस्ट में, सो इट विल हैव ब्लू ब्लैक कलर. ऑप्शंस देखते हैं. ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट X. नो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, तो स्टार्च टेस्ट नहीं होगा. बेसिकली आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट वेदर द स्टार्च इज प्रेजेंट और नॉट. अगर स्टार्च होगा इट विल टर्न ब्लू ब्लैक, अदरवाइज इट्स नॉट. Blue black would be obtained on the leaf of plant Y and no color change in Y. Yes, it is correct.
रेड कलर तो होता ही नहीं है, तो सी और डी को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द apparatus एयर टाइट? देख लेते हैं। प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट, यस उस पर करते हैं हम, आपने देखा था यहाँ भी बोला गया था कि ग्लास प्लेट के ऊपर रख रहे, वो एयर टाइट करता है। यूजिंग अ सक्शन पंप एयर टाइट नहीं करता, वो एक्सेस एयर को रिमूव कर देता है, वो वैक्यूम क्रिएट करता है। अप्लाइंग वैसलीन टू द सील ऑफ बॉटम ऑफ चार्ट, यस इट डज। नो, सो 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन, और 1 and 3 यस, तो हमारा ऑप्शन हमें यहाँ पे 1 and 3 सी में दिख रहा है, so C is the correct answer. Now let's move on to case study 3, and this is the last question of the paper. Noor, a young student, was trying to demonstrate some properties of light in her science project. और क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक्स को रखा, रे 1 2 और ये इस तरीके से रे इमर्ज हुई। Okay, she kept X inside the box, yes we can see, and with the help of laser pointer made light rays pass through the holes, yes we can see the light rays also. She had a small butter paper screen to see the spot of lights being cast as they emerged, and we could see that also. So question is, what could be the X that she placed inside the box to make the rays behave as shown? A converging lens? No. A plane mirror? No. A triangular prism? No. See, here we see the rays are parallel. Ray 1 and 2, they are parallel. So that means it is going to be a parallel sided glass block. So B is the correct answer. She measured the angles of incidence for both the rays on the left side of the box to be 48.6. So basically angle of incidence कितना दिया है आपको? It is 48. Let me just check the value. It is 48.6 degree. This is degree. Okay. And she knew the refractive index of the material, जो x रखा था उसका refractive index था 1.5. So angle of refraction हमें जानना है, हमें फॉर्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, साइन आई दिया है 48.6, साइन आर हमें निकालना है, एंगल आर। सो बेसिकली जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, सो एंगल आर वुड बी इक्वल टू दिस वुड बी 48.6 डिवाइडेड बाय 1.5, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.75 इस एंगल की। दिस वुड बी 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5. Yes, and when you will divide it, it will come, these are all degrees. This is 45 degree, this is 40 degree, this is 30 degree, and this is 60 degree. So when you will solve for it, it will come out to be 30 degree. It will come out to be 30 degree. So C would be the right answer. Okay, next question. Her friend noted the following observation from his demonstration. Glass is optically rarer. क्या glass rarer होता है air से? No, it is denser. Air and glass allow light to pass through them with no. If they are not having the same density, how come वो same velocity से pass करेंगे? Air is rarer than glass. Yes, true. Speed of light through a denser medium is faster. No, it is slower. The ratio of sine of angle of incidence of first medium to sine of angle R is equal to refractive index. Yes, it's correct. So basically हमारे पास option correct है 3 and 5th. डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करना था। सो इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ अ मटेरियल व्हिच हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5, अब आपको बोला है कि अगर जो x है वो ऐसी चीज से बनाया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कम होता, अगर कम होता तो मतलब वो कम डेंसर होता, कम डेंसर होता तो उसमें स्पीड ज़्यादा होती, स्पीड ज़्यादा होती तो लेटरल शिफ्ट के बारे में पूछा गया है, तो क्या लेटरल शिफ्ट कम होती? यस, कम होती, ज़्यादा नहीं होती, सेम नहीं रहती, और हम कमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली ए वुड बी द करेक्ट आंसर। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सेक्शन सी ऑल्सो। And with this we come to an end of this session. I hope you enjoyed it. Please take this as my tip, as I told you कि जब भी आप कोई questions करते हो, question जो दिया होता है, have a rough idea in your mind, recall your knowledge, and then उसका जो भी main points है उनको लिख लो, और फिर options पे अपना time waste किया करो basically। कई बार क्या होता है, हम options को direct देखते हैं तो हमें confusion भी हो जाता है, तो but उस case में आप बहुत confident भी होगे and you will save your time also. And please don't be scared of the picture based and paragraph based or some the graph based questions. They are very easy. The answer actually lies in them only, but you have to be tricky in catching it.
So with this, we come to an end of this session. I hope you like it. So we'll be bringing more and more sample paper, series for you, so that you can practice more and more and be more confident in science. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And if you haven't subscribed our channel, so just subscribe it right now. So me, Divya, thanking you. So we are meeting very soon. Till then, take care. Bye-bye.